in this way, when you are saying that your words have landed on me like this, that doesn't mean that these words are like this for everybody in the world. What I'm trying to say, you take responsibility of your perception कि मेरे को ऐसा लग रहा है. So मैं ये नहीं कह रहा कि अगर right wrong कि हमको भाषा नहीं बोलनी, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं बोलने, सब चलता है. पर अगर जो बोलना है, if you say कि I feel this and this is my need, so that is, people are more willing to hear rather than saying that you are an idiot. Namaskar, I'm Juhi Jain. I am the creator of the show Golden Nuggets with Juhi. Golden Nuggets is about getting interesting guests from all walks of life who have different experiences, and through their experiences we can create a lot of perspective into our lives. These conversations help us build those perspectives, and those perspectives then help us build clarity, and clarity is something that brings joy. So enjoy the show. And our guest for today is Shami Nanda. He is a family coach. Today we've really spoken a lot about healthy communications. He does a lot of work with non-violent communications. Non-violent communications helps in bringing families closer, getting a parent and a child closer, because through this one tool simply helps us in framing our words better, understanding and feeling the other person, their needs, empathizing with every human basically. So this conversation is something that अगर आपको अपने relations को improve करना है, you must hear it. And it's a slow process, but baby steps लेके I think it's a possibility. So through today's conversation, at least an exploration into this world is a possibility. Do stay tuned till the end. There are lots of takeaways. Please share with family, friends whom you think may benefit and get inspired by this conversation. Thank you. Welcome, Shami, to Golden Nuggets. And how are you feeling today? Yeah, I'm also good. I was a bit low on weather, little bit Diwali Dashera का जो pollution था. But I have some relief, but I'm on a restoration journey right now. Restoration. So you talk about three things a lot: NVC, Peel family, and holacracy. So पहले तो आप ये तीनों concepts को बताइए. What are all three of them? तो NVC is उसका full form है non-violent communication, जो कि मार्शल रोजनबर्ग करके हैं. उन्होंने उसको मतलब एक तरह से उसको प्रेजेंट किया. एंड ही वाज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट. एंड उनको लगा कि जिस तरह से हो रही हैं चीज़ें उसमें तो काफ़ी हम लेबल कर रहे हैं वगैरह. एंड ही स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, एंड देन ही केम अप विद दिस आइडिया कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को राइट रॉन्ग और पनिशमेंट रिवॉर्ड में देखते हैं. क्योंकि हमारी ये मोरालिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे एक्शंस में, हमारे इंटरेक्शंस में ये कॉन्स्टेंटली अंदर एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल रहता है. और ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है हमारी भाषा में भी रिफ्लेक्ट होता है. तो अगर कोई ग्लास टूट जाएगा तो मैं बोलूँगा ग्लास तोड़ दिया या ग्लास टूट गया, दोनों एक्सप्रेशन अलग हैं, है ना. तो जब मैं बोलता हूँ ग्लास तोड़ दिया, मैं कहता हूँ कि ब्लेम डालता हूँ. फिर जब ग्लास टूट गया मैं ऑब्जर्वेशन बोलता हूँ. और ग्लास टूटने से मेरा क्या कंसर्न है, नुकसान हो गया, किसी को चोट लग सकती है, तो मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस बोल रहा हूँ. उससे मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ. तो उन्होंने ही केम अप विद दिस आइडिया कि जिस तरह से हम राइट रॉन्ग थिंकिंग और पनिशमेंट रिवॉर्ड से बाहर निकल के हम एक नीड्स की कॉन्शियसनेस पे कैसे आए. एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ NVC, आई वुड से. कि एनीबडी कोई भी जरा कुछ भी कर रहा है तो अपनी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूरत पूरी करने के लिए कर रहा है. और जब हम वो समझना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, मेरे को देखा जा रहा है. आई एम सीन, आई एम हर्ड, आई मैटर. सो दूसरा, जब मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं अगर ये बोलने की बजाय कि आपने क्या गलत किया, अगर मैं बोलूँ कि उससे मेरी कौन सी नीड पूरी नहीं हुई, तो मैं ब्लेम की भाषा से बाहर निकलता हूँ. तो मार्शल ने ये बोला कि बिकॉज राइट रॉन्ग थिंकिंग पनिशमेंट रिवॉर्ड में हम इतना इमर्स्ड हैं, तो कॉन्स्टेंटली हमारी जो भाषा में ब्लेम, अटैक, डिफेंस, शेम, हम ये सब करते रहते हैं.
एंड उसका नतीजा ये होता है कि अगले बंदे को भी अटैक लगता है तो वो भी डिफेंड में आ जाता है, तो फिर अब वो एस्केलेट होती चीज़ें। पर अगर हम इसको छोड़ेंगे तो दूसरी चीज़ क्या है? सो ही केम अप विद सम प्रिंसिपल्स लाइक बेसिक थिंग्स, बट द कोर इज़ कि हम नीड्स पे देखें और एक दूसरे की नीड्स देखें और नीड्स के हिसाब से हम देखें कि अग्रीमेंट्स क्या, कैसे स्ट्रैटेजीज हमको ढूंढनी है। सो मेरे पास भी ये किताब है एनवीसी और मैंने पढ़ा। सो आई हैव गॉन थ्रू कपल ऑफ दीज बुक्स एंड ऑल्सो चेंज योर क्वेश्चंस चेंज योर लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल बुक, ऑल रिलेटेड टू कॉन्वर्सेशंस, या आप कैसे अपने कॉन्वर्सेशंस को इस तरह से करो कि भाई सामने वाला सेफ फील करे। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक एनवीसी इज़ ऑल्सो। थियोरी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने जाए ना तो हमारे पास्ट पैटर्न्स, पास्ट कंडीशनिंग आती जाती रहती है। तो उसमें ना हमको यही देखना पड़ेगा कि हम जो अभी कर रहे हैं वो भी हमने सीखा हुआ है। मतलब कि हर कल्चर में चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर आप जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे एक दोस्त है उदयपुर में, तो उसकी शायद माँ किसी के घर गई और मतलब वो गांव के बैकग्राउंड से हैं और वहाँ पे खाना था और उन्होंने कहा कि आप लोग अपना अपना ले लेना, और वो चले गए। तो उसकी माँ को बुरा लगा कि उन्होंने तो पूछा ही नहीं। और एक लड़की को इंटरनेशनल स्टूडेंट थी, वहीं उदयपुर आई थी, उसको किसी के घरों में रहने के लिए भेजा, होम स्टे नहीं अपन करते कि वॉलंटियर्स आते हैं तो। और अगले दिन रोते रोते वो आई और उसने कहा मेरे को वहाँ नहीं रहना। उनको मुझे इतना खिलाते रहे कि मेरे को बड़ा, मैं मना नहीं कर पाई। तो हम जैसे कि जो इस कल्चर में अप्रिशिएटेड है दूसरे कल्चर में वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ, करेक्ट। एवरी कल्चर हैज़ देयर ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और विद इन द कल्चर नाउ अभी आप देख ही रहे हो हमारे घरों में, अब आपके पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं और बच्चों के फ्रेंड्स हैं, तो वो अलग अलग दुनियाओं में रह रहे हैं। उनकी भाषाएं हैं, उनके जो नॉर्म्स है, उनके जो इनफैक्ट जो जेन जी बोलते हैं, जेन जी की आवाज़ की लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज, और जेन अल्फ़ा की और भी डिफरेंट लैंग्वेज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको हम बोल रहे हैं इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल थिंग, इट इज़ अ कंस्ट्रक्ट, इट इज़ विच वी हैव लर्न दैट बिहेवियर। तो अगर आप इफ़ यू हैव लर्नड इट वी कैन ऑल्सो अनलर्न इट, और जब अनलर्न करेंगे तो जोर तो आता है। प्रैक्टिस इज समथिंग वन मस्ट कीप डूइंग। इसमें मार्शल ने बहुत अच्छा बोला, उसकी शायद कोई वर्कशॉप थी ऑन रिलेशनशिप्स, और उसने उसके एंड में बोला नाउ डोंट गो होम एंड स्पॉइल अ परफेक्ट मैरिज विद नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप कोशिश करोगे तो किसी नए नए फ्रिक्शन आएंगे, कुछ और नई चीज़ होगी ना, क्योंकि लैंग्वेज इज एन अग्रीमेंट। अगर मैं आपसे अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, आप भी हिंदी में बोल रहे हो, मैं एक अग्रीमेंट है। अगर दुकान पे जाता हूँ, मैं ऑटो वाले को पैसे देता हूँ और ऑटो वाले को एक अग्रीमेंट है। अब सडनली मैं दूसरी भाषा बोलने लग जाऊँ तो आप बोलोगे ये क्या है। तो अगर हमारा अग्रीमेंट ऐसी भाषा का है जिसमें कि मैं बोलूँ कि ये क्या कर रही है, तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल, बजाय कि बोलूँ कि आई फील सैड दैट, तो बोले ये क्या कर रहा है। आपने कुछ नया सीखा, आपके पार्टनर ने नहीं सीखा, और आपने अचानक से वो स्विच किया तो वो उसको अजीब लगेगा। पर उसमें द सोलेस यही है कि यू स्टार्ट ट्राइंग, एंड शुरू में आप ट्राई भी नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, पर छोटे छोटे जब एफर्ट्स लेने लग जाओगे, आई थिंक सबसे पहला पार्ट तो उसमें ये कि rather than thinking of practicing and speaking it, it's good to first practice in listening people. That is easier. तो इंटरनल काम मेरा शुरू हो सकता है। सो उसमें भी है कि ऐसे होगा कि अगर हमारे 10 बार ट्रिगर होते हैं तो शुरू में मैं 1-2 में फ़र्क करने लग जाऊंगा, फिर मैं थोड़े दिन में क्या होगा कि मैं अगले 2 में क्या होगा कि उस टाइम तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, और बाद में सोचूंगा अरे यार मैं ये कह सकता था। तो धीरे धीरे होने लगता है, प्रोसेस होने लग जाता है धीरे धीरे। लेकिन शम्मी, एग्जाम्पल्स दो ना, व्हाट इज़ अ वायलेंट कम्युनिकेशन? मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि वायलेंट भी एक लेबल है ना। हम बोले वायलेंट है तो किसी के लिए तो वो बहुत नॉर्मल है, तो शायद हम ये भी बोलने में डर लगता है कि ये वायलेंट है या नॉन वायलेंट है, क्योंकि उसमें भी लगता है अरे आप बड़े प्योरिस्ट हो जी, आप तो बड़े नॉन वायलेंट करते हो। ऐसा भी नहीं मैं करना चाहता, पर एक जो भाषा है जो मार्शल ने समझाया, तो उसने ये एग्जाम्पल लिए जैकल और जिराफ के, जो मैं थोड़ा सा उससे बहुत आसानी से समझ आता है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो जैकल जो है उसने मार्शल ने पिक किया एज अ सिंबल ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिफेंस एंड अटैक, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, उस कॉन्शियसनेस में कोई बैठा हुआ है। तो दैट इज़ जैकल बिहेवियर, और उसकी लैंग्वेज भी जैकल लैंग्वेज होगी। तो और उसने एज अ मेटाफर ही ले लिया, क्योंकि जैकल नीचे रहता है, उसका ज़्यादा पर्सपेक्टिव नहीं होता है। जैकल्स ऑल्सो फीड ऑन डेड थिंग्स, उनको मेटाफर की तरह ऐसे ले लिया मार्शल ने कि इफ़ यू हैव डेड आइडियाज़ कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, यू नो, औरतें तो ऐसी होती हैं, गप्पे ही मारती रहती हैं, मतलब जो भी कहानी आप बनाओगे, तो दोज आर डेड आइडियाज़। तो जैकल्स फीड ऑन दैट। और जिराफ का जो एग्जाम्पल लिया उन्होंने, क्योंकि जिराफ जो है
जिराफ फीड्स ऑन लिविंग थिंग्स, है ना, एंड जिराफ इज वेरी टॉल, सो इट हैज़ अ वेरी बिग हार्ट बिकॉज इट हैज़ टू पंप सो मच ब्लड. तो जिराफ एज अ कॉन्शियसनेस विच स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट. तो फीलिंग्स और नीड्स की भाषा बोलना कि उसको क्या चाहिए, तो हार्ट की जगह से वो कर रहा है. और एक और बात है कि जब जिराफ क्योंकि ऊपर से देखता है पर्सपेक्टिव, तो जिराफ जब ऊपर होता है तो उसको लार्जर पिक्चर दिखती है कि अगर ये गुस्सा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो इट कैन सी द बिगर पिक्चर. सो वी हैव दिस टू लैंग्वेजेस, यू नो, वन इज दिस जैकल और जिराफ, यू नो. तो अगर जैकल की जो भाषा होगी, मतलब कि अगर कुछ भी है कि ग्लास तोड़ दिया, यू नो, या ग्लास टूट गया, सो वी आर ट्रेन टू बी वेरी गुड जैकल्स बचपन से. सो दैट्स द बिहेवियर वी हैव बीन ट्रेन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला शर्म नहीं आती क्या तेरे को, तो द जैकल बिहेवियर इसको सिखाना है, इसको डराना है, इसको पनिश करना है. तो ये सब हमने जब सीख लिया है, तो जब मेरे सामने कुछ होता है तो मैं भी कहता हूँ इसको मारो या इसको डांटो या शेम, क्योंकि वही हमने देखा है. तो दैट इज द जैकल बिहेवियर. So, for example, if a child is misbehaving, if guests are over, talking badly, talking rudely, answering back. The fact is the whole word कि तुम misbehave कर रहे हो, that itself is a jackal consciousness. But मैं इसके before I go deeper into this, I want to say one thing. So it's not that jackal is one kind of people are jackals and one people are giraffes. So it's like this, you know. हम सब में So we have the jackal and giraffe both. Giraffe both. हाँ. But when we have a language problem, we say stop misbehaving. What did I do? बच्चा सोचेगा ना. अगर मैं misbehaving बोलूँगा तो I've already put that you're wrong and you deserve to be punished. So Marshall बोलता है कि बहुत interesting चीज़ उसका था कि you know sometimes there are children who do very difficult things and it's very painful for the parents and they say very difficult things like what? No. So I'm just saying the no itself when you say answering back because the child is not consenting with that. पर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे लिए तो रूड बिहेवियर है, यू नो, क्योंकि मैंने सीखा है कि हमने तो पेरेंट्स को कभी भी आंसर बैक नहीं किया ना, तो हम सोच रहे हैं आप भी वही करोगे. द फैक्ट दैट कि इट इज इन माई परसेप्शन अ रूड बिहेवियर. नहीं, बट अगर हर्टफुल लग रहा है तो हर्टफुल लग रहा है इज अ डिफरेंट थिंग दैन सेइंग कि यू आर रूड. सो आई एम सेइंग टॉक अबाउट कि वो हर्टफुल लग रहा है, विच इज द जिराफ थिंग विच आई वुड से कि यू नो व्हेन यू से नो टू द यू नो डिनर दैट आई मेड, I feel sad and hurtful because I put a lot of effort in this. And now this food is going to go waste. Or the way you say it, you raise your voice or you push the plate. So it is hurtful for me. So when in this way, when you are saying that your words have landed on me like this, that doesn't mean that these words are like this for everybody in the world. See, what I'm trying to say, you take responsibility of your perception. कि मेरे को ऐसा लग रहा है. सो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर राइट रॉन्ग की हमको भाषा नहीं बोलनी, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं बोले, सब चलता है. पर अगर जो बोलना है, इफ यू से कि आई फील दिस एंड दिस इज माई नीड, सो दैट इज पीपल आर मोर विलिंग टू हियर रादर देन सेइंग दैट यू आर एन इडियट. यू आर सेइंग कि रादर देन सेइंग कि यू आर रूड और यू आर मिसबिहेविंग, आई शुड से इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, आई शुड से कि मुझे खराब लगा. ओके, इस बहाने हम समझा सकते हैं कि एनवीसी के 4 एलिमेंट्स हैं. तो फर्स्ट यू स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन. पहले आप ऑब्जर्वेशन बोलो. वो मिसबिहेविंग के पीछे ऑब्जर्वेशन क्या है कि मतलब कि हुआ क्या है, व्हाट अ सीसीटीवी कैमरा सीज. तो इफ आई कैन टॉक ऑफ दैट देन आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्शन इन अ वेरी न्यूट्रल वे. बट दैट डजंट मीन दैट आई एम नॉट गोना, मैं ये बोल रहा हूँ कि सब चलेगा. पर उसको करने से उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं. अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेज की बात करूँ तो वो अलग बात है. पर अगर मैं उसको मिक्स कर दूं और तुम्हारे एक्शन को और मेरे कॉन्सिक्वेंस को मिक्स करके बोलूं कि यू आर रूड, तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. नहीं तो क्या करना चाहिए आप बताइए. मैं तो बहुत लेवल्स हैं करने के. हाँ, करेक्ट. सो फर्स्ट इज इफ आई जैकल देन आई से तमीज नहीं है कि तेरे को बात करने की. तो बोलेगा कि हाँ तमीज है तो सही, और क्या है, इतना सड़ा हुआ खाना बनाते हो कि तुम हरदम ऐसे करता है, पिछली बार भी गेस्ट आए थे ऐसे किया था, जस्ट गेट आउट. तो यू नो, तो अब ये 2 जैकल कर रहे हैं. अगर मैं जिराफ स्पेस में आऊँ तो पहली चीज़ तो मुझे करनी है अपनी ग्राउंडिंग, where I can even start with self-empathy, which will sound like ki, oh my God, you know, I've taken such a hard effort the whole day and I'm so exhausted, and yeah, I wish that there was some gratitude for all the effort that I'm doing and I feel so sad. This is internally मैंने किया. For example, मतलब मैं टाइम को एक्सपैंड कर रहा हूँ. देखो क्या होता है कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट में हमारा कुछ ट्रिगर होता है और उसकी रिस्पॉन्स होती है, उसमें टाइम बहुत कम होता है.
अभी मान लो हमारे पास टाइम है प्रैक्टिस करने का, हम टाइम को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वो टाइम हमारा श्रिंक होता जाएगा. तो नेक्स्ट थिंग वुड बी दैट व्हाई इज माई चाइल्ड सेइंग दैट, व्हाट इज द चाइल्ड्स नीड. मैंने अपनी नीड भी देख ली, आई एम एग्जॉस्टेड एंड इट्स टू मच फॉर मी टू हैंडल. सो इफ यू आर अ चाइल्ड, ठीक है, एंड आई बी दिस कॉन्शियसनेस फॉर अ मोमेंट, सो आई कैन डू मेनी अदर थिंग्स. आई कैन से यू डोंट लाइक दिस फूड, तो बच्चा क्या बोलेगा, बोल सकता है और गुस्से में, हाँ पिछली बार भी आपने बनाया था, सो डू यू वांट मी टू मेक फूड विच यू ऑल्सो एंजॉय. तो बोलेगा कि हाँ कभी नहीं बनाते हो आप. और सारे लोग हैं विटनेसिंग ऑल ऑफ दिस सीन. अब जब विटनेस हो रहे हैं तो मेरे अंदर फिर वापस सेल्फ एम्पैथी में करूँगा. ओ माई गॉड, एवरीबडी मस्ट बी सेइंग लाइक व्हाट अ शिटी मॉम आई एम. यही कल्चर मैंने दिया है क्या बच्चों को. एक गेस्ट आते हैं ठीक से बात भी नहीं कर सकते हैं, दे मस्ट बी जजिंग मी. देन आई हैव सम मोर नीड्स, बट आई वांट देम टू हैव एक्सेप्टेंस विद द स्ट्रगल दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, because I'm trying out something very different with my child, and I want them to give me also some space. See क्या होता है, ट्रिगर बच्चे ने कुछ किया है जो शेम मेरे अंदर आई है. करेक्ट. So this is something that I need to work on also ना. So अगर मैंने शेम पे काम कर लिया, you know, a friend of mine उर्मिला वो कहती कि मेरे बच्चे तो क्या है कि किसी को नमस्ते वगैरह भी नहीं करते थे, you know, and I'm perfectly fine अगर मैं किसी घर जाऊँ और बच्चा मुझे हाई नहीं बोले. पर बहुत लोग को लगता है अरे क्या वो नमस्ते भी नहीं कर रहा है, और शी वुड फील एम्बेरस्ड. फिर समझ आया कि यार ये मैं इतनी एम्बेरसमेंट खामा खा की लेने की ज़रूरत नहीं मुझे. तो उसने साफ बोल दिया कि मेरे बच्चे नमस्ते नमस्ते नहीं करेंगे, आप लोग अपने आप को संभाल लो. तो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज नाउ द थिंग्स हैव मैग्निफाइड बिकॉज ऑफ हाउ अदर आल्सो रिस्पॉन्डिंग ना. इफ अदर्स वर सेंसिटिव who would say कि ठीक है आपका बच्चा परेशान है, तो they would be okay, they would not judge you, you know, for that. That needs a higher consciousness, I think. I think इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है. मुझे पहले तो ये कहना चाहूँगा एक जॉन होल्ट के बारे में. उसकी किताब है एस्केप फ्रॉम चाइल्डहुड. पहले तो हम बच्चों को एक अलग स्पीशीज़ की तरह देखना छोड़ दें. सो जब हम ये कहते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा वो नहीं कर सकता जो कि अडल्ट कर सकता है. बच्चे को तो बच्चे की तरह रहना चाहिए ना, बच्चे को तो स्वीट रहना चाहिए, बच्चे को तो जेंटल रहना चाहिए, बच्चा सुबह सुबह स्माइल करना चाहिए. पर उसके तो अपने ड्रामे चल रहे हैं बच्चे के, उसके वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है आपको नहीं पता. एग्जैक्टली वो स्कूल से किससे झगड़ा करके अभी आया और आके फिर आपने बोला कि बेटे यू नो आपके लिए अच्छा खाना बना, वो इसका मूड ठीक नहीं क्योंकि पिस्ड ऑफ अभी भी झगड़ा हुआ है किसी से. सो आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक व्हेन पेरेंट्स से दैट यू नो व्हेन माय चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस फॉर नो रीजन, सो इट्स अ रीजन दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, बट द चाइल्ड हैज अ रीजन. But if it's a repetitive behavior, so which means that you are doing something repetitively which is triggering the child na. Again let me say one more thing which is actually very important, कि ये जो पेरेंट चाइल्ड वाली जो कॉन्वर्सेशन है जिसमें कि हम सोच रहे हैं कि ये पेरेंट और चाइल्ड के बिहेवियर से सॉल्व हो जाएगा, नहीं, इट्स अ सिस्टमिक क्वेश्चन. जिस सिस्टम में वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि रोज रोज वो चीज़ें हो रही है. मतलब एक किसी ने एग्जांपल दिया था कि समुंदर में फिश है, तो बेबी फिश है और वो घूम रही है, और एक अडल्ट फिश आती है और वो कहती है कि हाउ इज़ द वाटर. तो बेबी फिश बोलती है कि वेयर इज़ द वाटर. उसको पता ही नहीं कि वो किस में एग्जिस्ट कर रही है, संदर्भ क्या है, तो किस जगह के क्या रूल्स हैं, क्या अग्रीमेंट्स हैं. और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर देयर ऑटोनॉमी इज चैलेंज्ड. दे डोंट हैव अ चॉइस टू स्पेंड मनी, दे डोंट हैव अ चॉइस टू ट्रैवल, दे डोंट हैव अ चॉइस टू, आई मीन मैं आज देख रहा था अखबार में खबर थी ऑन चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, तो मेरे को लगा एक सोसाइटी डिफरेंट है और चाइल्ड मैरिज उसमें चलती है सपोज, अगर मैं डिफरेंस की जगह से देखूं, पर लगता है कि नहीं उसमें प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कंसेंट नहीं है, कंसेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है शायद, वो भी अब काफ़ी सारी स्टोरी है कि उनको तो पता ही नहीं है व्हाट आर दे गेटिंग इनटू. पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब काफ़ी बार बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, जो कि लाखों करोड़ों बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, तो क्या वहाँ को हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं क्या, उनकी चॉइस है क्या. तो हम सिंह कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इनकी चॉइस नहीं होनी है, इनको क्लासेस में बिठाओ, कोई इनको पढ़ाए. तो जॉन होल्ट की जो किताब है एस्केप फ्रॉम चाइल्डहुड, वो कहता है कि हम इन्फेंटलाइज कर रहे हैं तो बच्चों को, हम उनको देख ही नहीं रहे कि वो एक इंडिविजुअल है जिसको, तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इक्वालिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ इक्विवेलेंस. सो दे हैव द सेम फीलिंग्स एंड दे हैव द सेम नीड्स. जो मेरे ससुर को भी हैं उनको भी वही नीड्स हैं भाई. जब उसके हिसाब से खाना नहीं बनता तो कोई अडल्ट बोल सकता है क्या है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब जिराफ कॉन्शियस में हम आते हैं, तो अगर वो बच्चा कह रहा है कि ये खाना मुझे नहीं जम रहा है, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि वाई आर दे बिहेविंग लाइक दिस, लाइक नोबडी डज इट फॉर नो रीजन, दे हैव सम रीजन विच आई डोंट अंडरस्टैंड, विच आई डोंट अग्री विद, विच आई डोंट इवन थिंक दे हैव द राइट टू हैव दैट रीजन. That's the thing. क्योंकि मैंने उनको लास्ट में सोचा हुआ है ना. अब मेरा सारा प्लान है
मेरे को ऑफिस जाना है, काम करना है, ये करना है, अब ये बच्चा बीच में परेशान कर रहा है। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि वो पंगा नहीं करेगा, आप मान के चलो भाई वो पंगा करेगा। वो स्पेस डालो उसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। सो सी टेल यू वन थिंग इंटरेस्टिंग कि एक मैकेनिज्म और ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है। तो मैकेनिज्म लिविंग नहीं होता है, कंप्यूटर है वो लिविंग नहीं है, पर ऑर्गेनिज्म आपको कॉन्स्टेंटली फीडबैक देता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी यूजफुल थिंग ऑल्सो। So this is very beautiful because, like, suppose I had to shoot the podcast today. So I have noticed with my son Akshat, if I brief him beforehand, this is going to happen. Mama needs this time And alone space. and this space. He really understands and he really takes care. But there are days when he doesn't know, and those are days when he'll say, "You play with me, and why can't you play?" Because it's his space also, and suddenly in his space somebody is coming. His access to space is controlled. Correct. Yeah, so what you are saying that when he's involved in it, then he's willing to collaborate. That is the principle. जो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे भी कुछ दिनों पहले समझ आई है, जो बहुत काम आएगी लोग को, कि आई थिंक पेरेंटिंग इज़ अ जर्नी ऑफ गिविंग द वैल्यूज़ ऑफ लीडरशिप। हमारे यहाँ बोलो कल्चर में कि लीडरशिप क्यों नहीं है, क्योंकि पेरेंटिंग इतनी स्क्रूड अप है, क्योंकि पेरेंटिंग कोलैबोरेटिव है ही नहीं। पेरेंटिंग में कॉन्स्टेंटली वर्कर हम बना रहे हैं, तो वर्कर ही हमारा वर्कर भी ऐसा होता है कि वो लीडर ही नहीं होता है, क्योंकि उसको 8 साल 12 साल आपने बोला है कि बोर होके भी बैठो तो बैठो, तो फिर वो आगे जाके भी वो बताते हैं कि अरे सर आप ये करेंगे तो लॉस हो जाएगा। वो कहते हैं तू क्यों बता रहा है यार, छोड़ना, कौन सुनने वाला है, तेरे को क्या पड़ी, तू चुप रहना, तू अपना स्कूल के 8 घंटे कर, ऑफिस के 8 घंटे कर और निकल। तो फीडबैक देना जानते ही नहीं है, क्योंकि लगता है सुनाई तो होगी नहीं, बोल के क्या। और इसलिए फॉर पेरेंट्स अगर कोई ट्रिगर होता है तो आप कहो कि थैंक यू, बता बेटे फीडबैक क्या है। मतलब मैं एक सिंपल बताता हूँ, मैं टील फैमिली रिट्रीट कर रहा हूँ। क्या है टील फैमिली रिट्रीट? ओके, तो टील फैमिली क्या है कि एक किताब है, उसका नाम है रीइन्वेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसमें केन विल्बर करके है, उनका काम है, और जिसमें उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट जब होती है, एवोल्यूशनरी स्टेजेस, उन्होंने अपने तरह से देखा कि कैसे लोग इवॉल्व होते हैं। बिजनेसेस को भी देखा और कॉन्शियसनेस को देखा, और उसमें से एक फेडरिक लोलू करके एक बंदा है फ्रेंच, उसने इस पे रीइन्वेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस करके काम किया, एक किताब निकाली। तो उसका कहना है इन लोग का कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ रही है, ठीक है, तो हमारे बाकी सिस्टम्स कैसे चलेंगे। अगर हम वो हायर कॉन्शियस की बात कर रहे हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होंगी। तो दिस रीइन्वेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसने स्टडी किया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो कि अलग तरह से चलती हैं, जो कि कोलैबोरेशन में चलती हैं। अब ये समझ आ रहा है कि अगर पेरेंटिंग कोलैबोरेशन में होगी तो क्या आर वी कोलैबोरेटिंग विद द चाइल्ड। मैं एग्जांपल दे रहा था वो टील फैमिली रिट्रीट का, कि विच आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो, कि किसी का फ़ोन आया कि मेरी मदर इन लॉ आएगी मेरे बच्चे को संभालने, तो टॉयलेट्स कैसे हैं, शी वांट्स टू और समथिंग, शी उनके लिए रहने का क्या अरेंजमेंट होगा। तो मेरे को लगा ये हमने मिस कर दिया, तो हमको वेबसाइट में डाल सकते हैं कि टॉयलेट्स कैसे हैं। एक्चुअली उसकी फोटो डालनी चाहिए कि लोग एक्चुअली टॉयलेट देखते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, कस्टमर केयर जिसको हम सोचते हैं कि एक मुसीबत की चीज़ है कि कस्टमर आके परेशान करता है, इज़ एक्चुअली अ फ्री कंसल्टेंसी। वो आपको बेटर कर रहा है, पर वो बेटर हम तब लेंगे जब हम उसको राइट रॉन्ग की भाषा के बिना सुनना शुरू करेंगे। क्योंकि कस्टमर तो ऐसे ही बोलेगा अरे क्या है सर आप लोगों ने किया है, मेरा हेयर कट किया है, प्रॉब्लम हो गई। पर वो प्रॉब्लम जब हो गई तो उसको और सुनना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई सर। फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे बंदे ने गलत केमिकल यूज़ किया सपोज, तो फिर मैं उसको चेंज करूँगा। तो सिमिलरली आई एम सेइंग कि एनीबडीज पेन दैट दे आर शेयरिंग इज़ अ फीडबैक। तो जो रीइन्वेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन किताब है उसमें एक चैप्टर होलोक्रेसी पे भी है, जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो होलोक्रेसी से चलती हैं। मतलब कि क्या होता है ना, अपने हर सबके कीड़े होते हैं कि बचपन से आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता। जैसे जूही अभी है तो कुछ ना कुछ आपको भी बचपन से कीड़ा रहा होगा कि ये अलग से करना है मुझे। तो मेरा भी कुछ कीड़ा था कि नहीं वॉइस मेरी होनी चाहिए। तो जब मैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स में गया जहाँ पे मेरी वॉइस नहीं थी, मुझे मज़ा नहीं आया। जैसे मैं बॉम्बे में इंडस्ट्री में काम कर रहा था, मैंने कहा नहीं जम रहा। तो जब मैंने ऐसा एक सिस्टम देखा, पहले तो NVC मुझे मिला, मुझे लगा यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें तो एक दूसरे को सुनते हैं लोग। पर उसमें मैंने एक पॉइंट पे देखा कि लिमिटेशन आ गई कि 1-2 लोग तो फिगर आउट कर लेते हैं, पर जब 50 लोग साथ काम करें तब कैसे करेंगे। तब आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। तो उसमें मेरे को मिली होलोक्रेसी कि वो 50, 500, 2000 लोग की ऑर्गेनाइजेशन भी चल सकती हैं उससे, विद दैट कॉन्शियस से। हाँ, जब मुझे पता चला मैं उसमें और घुस गया। मैंने ट्रेनिंग करी, मैंने US में होलोक्रेसी यात्रा करी, जिसमें कि मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन में गया जो कि सिस्टम से काम कर रही हैं। तो जब मैंने ये देखा कि ऐसा पॉसिबल है,
जो कि री इन्वेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसने क्या किया है, सिर्फ 10 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करी शायद, 10 है, पर उसमें कंडीशन ये थी कि वो 10 साल से कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं और उनमें कम से कम 100 एम्प्लॉय होने चाहिए, नॉट कि अभी नई नई कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और उनको स्टडी किया, वो किताब भी मैंने पढ़ी, तो उसमें टील वर्ड ऐसे आता है कि रेनबो के जो कलर्स है रेड से लेकर टील तक ऊपर जाता है, तो एज वी मूव उसने कलर्स को कॉन्शियसनेस से लिंक कर दिया है, तो टील इज़ द हायर कॉन्शियसनेस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज आर कॉल्ड टील ऑर्गेनाइजेशंस विच वर्क विद कोलैबोरेशन। टील फैमिली, टील तो ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए उसमें से ये मेरा क्रिएशन है कि मैंने टील वाले में जो ब्रायन रॉबर्टसन जो होलोक्रेसी सिखाता भी है, उसको मैंने बताया कि जो लर्निंग मैंने आपसे सीखी है मैं उसको फैमिलीज में यूज़ कर रहा हूँ। तो वो होलोक्रेसी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स थे वो मैं फैमिली में लेके आ रहा हूँ, उसमें एनवीसी भी मिक्स कर रहा हूँ और ये होलोक्रेसी भी मिक्स कर रहा हूँ, और उसको टील फैमिली करके एक आइडियल, मतलब आइडियल तो क्या भाई, एक ऐसी फैमिली जो कि कोलैबोरेशन करती है, जिसमें कि बच्चा बोलता है कि ये खाना पसंद नहीं है मुझे, सो देयर इज ए इंटरेस्टिंग टेंशन, व्हाट, व्हाई डोंट यू लाइक दिस, कैन यू टेल मी मोर, सो देन आई एम क्यूरियस। कोई अगर कहता है ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिव है या फैमिली कोलैबोरेटिव, उनसे पूछो कि जब आपके यहाँ पे टेंशन होती है तो क्या हर जन अपनी टेंशन लाने का कोई प्लेटफॉर्म है उसके पास, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। तो बच्चा जो नो जोर से बोल रहा है ना, क्योंकि उसको कभी मौका नहीं मिलता है उसकी नो को सुनने का, तो हर बार उसकी नो की वॉल्यूम उसको बढ़ानी पड़ती है। पर अगर हम 1-on-1 हम प्रैक्टिस करेंगे, मेरे बच्चे ने आज बोल दिया कि देखो गुस्सा हो गया, पर आज बोल रहा है, पर रोज़ हमारे घर में सिस्टम क्या होना है, हमारे घर में वैल्यूज़ क्या होनी है। अगर हम वैल्यू ड्रिवन फैमिली हैं, पर्पस ड्रिवन फैमिली है, तो वी हैव सिस्टम्स विच विल बी डिफरेंट। हमारे यहाँ पे खाने अलग तरह से बनेंगे। अगर वो बच्चा कह रहा है मेरा होमवर्क करने का मन नहीं है, तो मैं उसको फुसला के फंसाऊंगा नहीं कि कर लेना, तो जा, उसमें क्या है। फिर बच्चा कहता है कि अब होमवर्क नहीं किया, मेरे जाने का मन नहीं है, तो देन आई कैन ट्राई टू सी द चाइल्ड हैज़ अ सेंस ऑफ शेम। मैं कह रहा हूँ नहीं कुछ नहीं हुआ, चले जा, तो उनको अच्छा नहीं लगता है वगैरह, तो वो रेजिस्ट करते रहते हैं। मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि जो मेरा काम है फैमिलीज़ के साथ इज़ एक्चुअली लीडरशिप प्रोग्राम। मतलब इफ सम फैमिलीज वांट टू डू दिस वर्क, दे आर एक्चुअली टीचिंग लीडरशिप टू देयर चाइल्ड। और पहला प्रिंसिपल कंसेंट है उसमें, कि अगर बच्चे को उसकी मर्जी के बिना बिठाया जा रहा है, मर्जी के बिना खिलाया जा रहा है, तो एक प्रॉब्लम है उसमें। तो फिर तो बच्चा जो मन चाहे करेगा ना। तो मैं एनार्की नहीं बोल रहा हूँ, जैसे अराजकता बोलते हैं, मतलब एनार्की नहीं है कि कोई कुछ भी करता रहे, बट वी नीड टू क्रिएट ऑर्गेनिक सिस्टम्स विच आर केयरिंग। पर आपने बोला ना कि जब आपके बच्चे को पता चलता है कि मॉम आज ये करने वाली है, तो ही रिस्पॉन्स डिफरेंटली। सो कैन वी हैव दोज काइंड ऑफ इवॉल्व कॉन्वर्सेशंस अबाउट फूड एंड स्क्रीन टाइम? राइट नाउ वी डोंट हैव दैट प्लेटफॉर्म। प्रॉब्लम ये है। वी विल जस्ट पुश द चाइल्ड, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे होना चाहिए। क्यों का जवाब नहीं है, shame, या जवाब है भी तो टाइम नहीं है उसको प्रॉपर्ली बैठ के। ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें लोग कहते हैं कि टाइम कहाँ है। सो व्हेन वी वांट टू क्रिएट सिस्टम्स, आप जब एक बिल्डिंग बनाते हो तो आप प्लान करते हो ना, लाइटें कहाँ लगेंगी, बाथरूम बनाते हो तो नीचे पाइपें गटर की बड़ी सारी लगती हैं। मैंने बाथरूम बनते हुए देखा था भी हमारे यहाँ पे, मैंने कहा वाह ये क्या, कितना काम चलता है। पहले मिस्त्री आके ये करता है, फिर वो पाइपें लगाता है, फिर टॉयलेट की सीट आती है, फिर एंड में सैरा की सीट लेनी है, फलानी लेनी है, वो देख रहे हो आप। तो अगर आप ये सब काम नहीं करोगे आपकी फैमिली में भी, तो ये फाउंडेशनल काम, ये इसके बिना बच नहीं सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूरी काम है, मोस्ट एसेंशियल काम है। और वो काम ऐसा है कि उसमें हमको सिस्टम्स बनाने हैं। एक बार हम सिस्टम सही बना देंगे तो हमारी गटर रोज रोज अटकेगा नहीं। पर जब हम सिस्टम बनाने में कम जोर लगा रहे हैं, हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट आई थिंक एक वह शब्द बोलना चाहता हूँ कि वी हैव अ सिस्टम्स ब्लाइंडनेस, जो कि डोमिनिक बार्टर करके एक बंदा है वो बोलता है कि हम चीज़ों को 1-to-1 पर्सन में सॉल्व कर रहे हैं, वेरेज हम ये नहीं देख रहे कि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। जैसे आप कोई केस स्टडी बताइए ना, कोई फैमिली हु केम टू यू while working you could see the transformation happen. People are coming after a lot of conflicts, and when they reflect with me, they realize, oh, I have done this, I could have done this. I have one family which I consider as my ideal Teal family client. मतलब उनके साथ मेरी रेगुलर हफ्ते टू हफ्ते मीटिंग होती है, जिसमें कि दे शेयर देयर चैलेंजेस एंड देन। कितने टाइम से हो रही है ये? तो अभी 4-5 ही मीटिंग हुई है उनके साथ, पर हमारा 10 मीटिंग्स का कमिटमेंट है अभी। पर एवरी टाइम जब होता है तो दे टेक समथिंग वेरी वैल्यूएबल एंड यू नो, एंड लॉट ऑफ टाइम जो पेरेंटिंग इश्यूज होते हैं उसमें मेरी जो कोचिंग होती है इज़ फॉर अडल्ट्स मोर। मतलब जब मदर और सन में झगड़ा होता है तो देन फादर वुड कम एंड take the side of the mother. So then I taught the father to actually become a mediator between both of them. Because then the child gets disconnected from the father. And mother is saying कि अब मेरी तो इसकी प्रॉब्लम चल रही है, now why are you adding the problem now?
So then I coach them into how to mediate in those moments. So I go slow and say कि अगर वो बच्चा ही बोल रहा है तो then how do you reflect to the child, how do you reflect to the mother, or even simple thing questions like कि junk food की जो बात चल रही है. So then we have conversations कि भाई why is your child wanting that? Yeah, so it's basically when they start understanding each other why the other person is doing, they say कि oh हमने मिस कर दिया था, and then they start doing things differently. तो ये तो हुई उनकी बात. आपने अपने अंदर क्या बदलाव किया? What you were before all of this understanding, before holacracy and NVC and what do you say, Teal family. इससे पहले आप क्या थे और अभी आप? I was married earlier, then I had a divorce which was painful. और तब मुझे कुछ हवा नहीं थी कैसे चीज़ों को डील करना है. लाइक फॉर एग्जांपल वही मैरिज जब आप होती है तो आपके 200-300 लोग आते हैं, पर डिवोर्स में मैं और मेरी जो एक्स वाइफ जिससे मतलब हमारा डिवोर्स, तो वो हम अकेले थे बस इन द. सो आई एम सेइंग सोसाइटी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दे वांट टू ब्रिंग यू टुगेदर, बट देयर इज नोबडी देयर व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग. So that was really painful, but then we also kind of reflected on it and then we understood why it happened, and it took us 2-3 years to understand. But then after that, when I was having relationships, so when I would have a relationship and when things wouldn't work, I would think that, you know, this relationship में problem है. उसमें वही होता था कि जब conflict होता था, that was the problem. तो मुझे लगता था ये बंदा ही ऐसा है, इस बंदे के साथ नहीं जमेगा. And then when I started getting into this and when I'm with my present partner, देन हमारे बीच में बहुत सारी टेंशन्स आई हैं. उसके भी कुछ चैलेंजेस थे. शी वॉज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज एंड बट बिकॉज ऑफ दिस लर्निंग, इफ शी डिड समथिंग विच वॉज प्रॉब्लमैटिक, अगर वो मेरे 10 साल पहले हुआ होता तो वो बहुत पहले पैकअप हो गया होता. बट इफ शी इज डूइंग समथिंग विच इज ट्रिगरिंग, आई कुड स्टार्ट सीइंग व्हाई इज शी डूइंग दैट. एम्पैथी आया. अभी हमारी कॉल हुई थी ऑन सेल्फ केयर, तो उसमें ये समझ आया कि जैसे मैं अपनी सेल्फ केयर चाहता हूँ ना, ये बहुत ही प्रोफाउंड चीज़ है मेरे हिसाब से, कि वो मैं अपने पार्टनर को भी वो सेल्फ केयर के लिए एनकरेज कर रहा हूँ कि नहीं. अगर मेरा पार्टनर कह रहा है, अगर निशांत कहता है कि उसको कहीं पे खेलने जाना है, कुछ करने जाना है, और तुम्हारे को कुछ है, तो कैन यू से कि यार नहीं यार, अगर वो सेल्फ केयर करेगा तो बड़ा अच्छा ही रहेगा मेरे को, एक अच्छा मोर एक्साइटिंग पर्सन मिलेगा मुझे. तो वही मैं कह रहा हूँ कि वी नीड टू ब्रिंग अ कल्चर ऑफ सेल्फ केयर. अगर अक्षत कहता है कि नहीं मम्मा मुझे रेस्ट करना है, और मेरे मन में चल रहा है कि यार कल एग्जाम है या कुछ है, तो क्या मेरे को उसकी रेस्ट को कैसे सपोर्ट करना है, और वाइल मेरी दूसरी टेंशन को मैं सॉल्व करूँ. कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्रोमाइज एंड अ शिफ्ट. तो कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि मैंने सोचा कि चल तू इतना कर ले, मैं इतना कर लेती हूँ. पर शिफ्ट वहाँ से आते हैं, मैं कहता हूँ कि यार आई रियली वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी नरिश्ड एंड रेस्टेड, यू नो. आई मीन आई हैव कैरीड माई चाइल्ड for 9 months and have done so much, and I've seen him through all that, and I really want him to have self-care, to be nurtured. And तो वो मेरा कहीं पे मेरा हार्ट से मैं कनेक्ट करती हूँ अपनी वो जिराफ. तो जब मैं वहाँ से आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अक्षत तू थोड़ा रेस्ट कर ले, तेरे को अगर चल रहा है. अगर वो ये भी कह रही है मम्मा मुझे पढ़ना है, then of course I can empathize with that also, but I can say कि you know तेरे को डर लग रहा है कि तू करेगा तो तेरे को कुछ डांटेंगे क्या, you know, do you want my support? So I'm just offer more things. So I'm available to जो उसकी नीड उसकी है, पर वो बोल भी नहीं पा रहा है. हम कई बार कहते हैं कि बच्चा बताता तो है नहीं, उसको तो पता ही नहीं है. हाँ, पर वो अगर दिख रहा है मुझे, तो क्या मैं उसकी सेल्फ केयर जो मुझे लग सकता है कि मेरी नीड से थोड़ी अलग भी हो सकती है, पर क्या मैं उसको देने को चाहती हूँ, यू नो. सो दैट्स नेक्स्ट लेवल. तो वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की स्पेस नहीं कि खींचातानी करके करने का, वो शिफ्ट है. अगर मेरा हार्ट शिफ्ट हो गया, फिर मैं कहती हूँ कि हाँ दूसरी तरह से अपन सॉल्व करेंगे. तो वी आर इंटीग्रेटिंग द टू पीपल्स नीड्स एक्चुअली. While I am listening to you and while I am also agreeing to a lot of it, and I think कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू हुआ है. It is tough maybe, but it is not impossible. It is where we have to pause. So अभी बीच में जैसे I did a very interesting thing. Like we wanted our machines to start sharp at 10. We are into manufacturing. और हमारा हो रहा था कभी 10:15 हो रहा था, 10:30 हो रहा था, इनएफिशिएंटली हो रहा था. सो एक तरीका था कि वो कर दो, कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम. कंट्रोल एंड कमांड. एक तरीका था दैट वी स्पीक टू एवरीबडी बिकॉज वी रियलाइज्ड एवरीवन's got into a certain pattern of coming and starting the work. So we had a conversation with
with the entire workforce where we had a question answer system. क्या अब आपको ये शिफ्ट करने के लिए आपका रिपोर्टिंग टाइम 20 मिनट पहले करने, मतलब आपने जो है इंटरकनेक्शन देखने लग गए कि अगर ये बदलना है तो कुछ और बदलना पड़ेगा, तो आप सिस्टम को थोड़ा चेंज करने लग गए, है ना, एडजस्टमेंट। मतलब बातें की, पहले समझाया, कॉन्टेक्स्ट समझाया, क्यों ज़रूरत है, ऐसे लगता है ना चल ही तो रहा है, क्यों ज़रूरत है। सो पहले तो वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, देन वी ऑल्सो हैड अ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती सो यू स्टार्टेड हियरिंग देम, करेक्ट है ना, तो लिसनिंग्स भी शुरू हुआ, हाँ, मतलब और लिसनिंग भी किया, हाँ, तो यू गॉट मोर फीडबैक कि वेयर इज द प्रॉब्लम। हाँ, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऑर्गेनिज्म और मैकेनिज्म का फ़र्क है, क्योंकि एक लिविंग सिस्टम है वो। बट फिर भी सबकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। कोई कोई जैसे उठ ही नहीं पाते हैं सुबह, अब मतलब उसमें कुछ दिखा नहीं, क्या क्या करें, कैसे करें। जिनके लिए थोड़े फ्लेक्सी टाइमिंग्स पॉसिबल थी एडमिन के लिए, उनके लिए वो किया, बट जो प्रोडक्शन में है उनके लिए अपन नहीं कर पाए। मतलब हाँ, नहीं कर पाए, वो भी ऐसे होता है, पर आई एम सेइंग कि फिर उनके लिए क्या कुछ और रोल्स हो सकते हैं कि नहीं, हाँ, जो क्या पता वो देर तक रुकने वाले लोग हैं, हाँ, यू नो, कई को सुबह आना मुश्किल हो, क्योंकि ये भी हमारे दिमाग में हो सकता है कि पंक्चुअलिटी, यू नो, मतलब ठीक है आपने एक अग्रीमेंट आप चाह रहे थे 10 बजे, ग्रेट, बट क्या पता वो जना देर तक रुक के कुछ और डिलीवरी कर सकता है, कुछ और काम कर सकता है। करेक्ट। तो उनसे ये पूछा जाए कि भाई तुम अगर इस टाइम नहीं आ सकते तो आर यू ओके गिविंग टाइम लेटर। जैसे मेरी अभी टीम मेंबर ने पूछा कि आज मेरी कज़न आ गई है तो कैन आई टेक अ ब्रेक, आई सेड यू कैन टेक अ ब्रेक, बट आर यू ओके गिविंग सम टाइम ऑन अ संडे। शी सेड या आई कैन गिव सम टाइम, ऐसे 2-3 आवर्स ही चाहिए कभी, ऐसे आर यू ओके टू स्ट्रेच दैट टाइम। बट अगर ना आता तो ठीक था, अगर हाँ अगर ना आते तो फिर कुछ और मैं करता नहीं, पर उसमें फिर मैं उसको बात करता कि भाई तुमको जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मेरे को भी वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मेरे को अपनी नीड्स का भी ध्यान रखना उन कॉन्वर्सेशन में। तो होलोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, व्हाट डज दिस टर्म मीन, होलोक्रेसी मतलब क्या होती है? सो होलोक्रेसी ये आती है, एक और चीज़ है सोशियोक्रेसी उससे, तो वही मेरी सारी इतनी कनेक्टेड होती है स्टोरीज। पर सोशियोक्रेसी एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है कि इट वॉज स्टार्टेड इन अ स्कूल ऑफ अ क्वेकर फाउंडेशन, क्वेकर का रिलीजन एक है, क्रिश्चियंस का सेक्ट, जिसमें कि तो उसमें दे वांटेड टू रन अ स्कूल विद अ कोलैबोरेटिव वे। तो एक ब्रायन रॉबर्टसन करके हैं, उन्होंने फिर उसी चीज़ों को और डेवलप करके होलोक्रेसी बनाई। तो जिसका कहने का मतलब है कि एक वर्ड है होलॉन, मतलब कि एवरीबडी इज़ अ होल, कंप्लीट, एवरी पार्ट इज कंप्लीट इटसेल्फ, तो होलॉन इज़ द वर्ड। सो जूही इज़ होलॉन है, मैं हूँ, आपका टीम वर्कर है, बच्चा है। तो व्हेन दीज होल्स कम टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज होल्स इज होलोक्रेसी। तो उसके फिर उन्होंने सिस्टम्स बनाए हैं, और उसकी सबसे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देयर हैज़ टू बी अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी कैन ब्रिंग देयर टेंशन। और जब वो टेंशन लेके आते हैं, उस टेंशन को आप प्रोसेस करने के 2 तरीके होते हैं। एक स्ट्रैटेजिक तरीका होता है, जैसे आपने बोला कि आज 10 बजे चालू होगी, और एक होता है आप पॉलिसी बनाते हो। तो कोई भी टेंशन से या तो स्ट्रैटेजिकली आप डिसाइड करोगे कि आज तू चले जा, चलो, जैसे आप मेरे को पिक करना था ड्राइवर, पर रोज रोज पिक करना था, बोलोगे एक ड्राइवर और चाहिए हमें। कल को पॉडकास्ट आपका ग्रो करता है तो आप बोलोगे नहीं, इसके लिए अलग मुझे चाहिए, करेक्ट है ना। तो फिर वो पॉलिसी है, बट दोज पॉलिसीज आर मेड आउट ऑफ टेंशंस ऑफ द पीपल। जैसे शमी, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर विजन स्टेटमेंट। आई वेंट थ्रू इट ऑन द वेबसाइट, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो एक बार आप बताओ आपका विजन स्टेटमेंट। See, one part is that at a larger level, I want people to have a space for them to be authentic and also have empathy for other people. And from that place, creating collaboration. Whether it could be relationships, you know, or it could be other workspaces. But right now my work is more in this focus in this area. But the larger thing is that how can I be honest and how can I support other people being honest, and they can express themselves. And while we express our honesty, how do we hold care for other people, which is sometimes difficult, but that's an intention. That's why it's a vision statement. We may not be able to do it, but you want to move towards that. I think I can talk a little bit about the Teal Family Retreat. I would want to create a space because parents जो struggle कर रहे हैं या families जो struggle कर रही हैं, हम कैसे करें, so how they can learn from each other plus learn from the facilitators also, and we will be taking real life challenges in that, you know, और उनके थ्रू हम कैसे काम करें जिसमें हम कोलैबोरेशन लेके आएँ। अ कम्युनिटी लिविंग टुगेदर फॉर 6 days, और वो कभी फायर साइड पे बैठेगी और सब चर्चाएं करेंगी और बातें करेंगी, और किचन भी वैसे डिज़ाइंड होगी। तो वैसे ही कुछ एक इवेंट हम कर रहे हैं जो पुणे में,
and I'm really excited about that. So, wrapping up the episode for you, my top three key takeaways from this conversation have been creating a safe space. So, second would be nobody does anything for no reason. And third would be parenting journey that is collaborative, encourages leadership and self responsibility. So, thank you, Shami, for the interesting talk that we had today. And I think it's going to encourage and inspire a lot of people to explore doing things differently. Thank you for making this space for me, so I could ramble from different areas of my life, from family to organizations, and ये सब चीज़ें हैं. So, do share and share with as many people. The episode can inspire so many people and bring joy into so many people's lives through exploration of different modalities, different topics. So, thank you so much.